Students, I am going to discuss the uh, centripetal force and its derivation. For this, suppose that a body is moving on a circular path with a uniform speed. Since body is moving with uniform speed, so it is called uniform circular motion, and the radius of this path of the circular motion is r, and the magnitude of the velocity is v, means the speed of the body moving on circular path is v. Now look at this figure. This is the circular path. I have taken a part of this circular path PQ. At any instant the particle is at P and its position vector taking C at origin is R1, and after delta t time interval the particle comes at this point Q, and now its position vector is R2. So we can say that the magnitude of R1 and R2 is constant because magnitude is the radius and this is the R. And similarly, at the point, the velocity of the particle along the tangent, so it is v1, and after the delta t interval of time it comes at q and its velocity at this point is v2, and hence we can say that the magnitude of v1 and v2 is constant because the body is moving with a constant speed, that is v, and in that interval of time it makes an angle delta theta at the center. So this angle PCQ is delta theta, and this delta R is the displacement, linear displacement when the body comes from P to Q. ये displacement है, and thus we can say that the R1, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि R1 plus delta R by the law of vector addition is R2. So the R2 minus R1 is delta R. ऐसा भी कह सकते हैं कि change in position vector. And now look this figure. This figure is the I am writing this V1, and this is these are parallels. This is the V1 and this is the V2. This is the V2, and according to law of vector addition triangle rule, we can say that this V1 plus delta V is equal to V2. So this delta V is equal to V2 minus V1, and since the angle between R1 and R2 is delta theta, so the angle between V1 and V2 is delta theta, so angle is delta theta. Now the aim of the derivation is to find the centripetal force, and the centripetal force is force, and to get the force at first we have to find out the acceleration, and then after getting acceleration we multiply the mass of the body, then you will get the force. So at first acceleration, that is the centripetal acceleration. So at first I will going to derive the centripetal acceleration. Centripetal acceleration, and acceleration is defined as the rate of change in velocity. So this is the
acceleration, and this is the rate of change in velocity is delta v by delta t and time interval delta t. But since it is not an instantaneous value, it is a the value of acceleration in the interval of time delta t. So this is the average value. So I am writing this average value. And now this average value, and so the magnitude of this average value is delta v by delta t. Now see this figure in triangle CPQ and triangle IGH. This angle is same. Here also delta theta and delta theta, and the side GH is the magnitude of V1 and side GI is the magnitude of V2, and magnitude of V1 and V2 is same, so it is a isosceles triangle. और यहाँ भी हम देखते हैं कि magnitude of R1 is R, magnitude of R2 is R, so it is also an isosceles triangle. So these two triangles are similar. ये ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड ऑफ द टू रेशियो बिकम्स इक्वल. तो इस ट्रायंगल में जो साइड है वो V1 का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा V का magnitude is the side of this 2, and in here the side delta R1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा R का मैग्नीट्यूड. नाउ here this the putting the value of for this delta V, this delta V is equal to V1 की मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा R की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R1 का मैग्नीट्यूड. ये होगा डेल्टा V की वैल्यू, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इज V and this is the delta R, and magnitude of R1 is R. So the value of delta V is V into delta R by T. Now putting the value of delta V in this equation, I am indicating this equation by 1 and putting this value in 1, we will get the average value of average acceleration का magnitude is equal to, putting the value delta V, this is the V delta R by R into delta T. Now for getting the instantaneous value, A limit delta t tends to 0, delta V by delta t, this is the magnitude only, and this is equal to limit delta t tends to 0 and the delta V is V delta R by R डेल्टा टी. ये वैल्यू हुआ एक्सलेशन का. अब यहाँ डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 होगा तो क्या होगा, ये समझने वाली बात है कि डेल्टा टी की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा. अब यहाँ
अगर डेल्टा टी मीन्स पी से क्यू तक जाने में लगा हुआ समय ये अगर टेंस टू जीरो हो जाए, मतलब घटते घटते जीरो की ओर बढ़ना शुरू करे, तो डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो होगा, ये एंगल भी जीरो होने लगेगी, जीरो की ओर होगा। यानी देखिए जैसे ही एंगल जीरो होगी तो ये क्यू पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर घटते घटते क्यू पॉइंट यहाँ, क्यू पॉइंट यहाँ, क्यू पॉइंट यहाँ, ऐसे आना शुरू होगा। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये जो वैल्यू डेल्टा वी है, वो डेल्टा वी जो होगा उस केस में डेल्टा वी ये परपेंडिकुलर टू V1 हो जाएगा, और डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर उस केस में ये परपेंडिकुलर टू R1 होगा। ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है, इसको हमको विजुलाइज करना है। देख लीजिए, सपोज अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, घटते घटते जब यहाँ आएंगे तो डेल्टा आर आपका छोटा होना शुरू हो जाएगा। डेल्टा आर छोटा होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये लाइन जो होगा डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी वो अलोंग ऐसे हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जब ये छोटा होना शुरू होगा तो ये डेल्टा वी छोटा होते होते अंत में V1 के परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन मिल जाएंगे हमको, और ये कंडीशन मिल जाएगा तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और डेल्टा आर जो होगा वो परपेंडिकुलर R1 के होगा। ये दोनों बात होगी तब जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा। अब यहाँ पर इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखेंगे क्या कि ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास हुआ तो इसको हम V/R को अलग कर लिया, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और ये V/R है, और डेल्टा आर यानी ये जो वैल्यू है, अभी आप देख रहे हैं कि ये आपके पास मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, और तब जो हमारे पास ये वैल्यू है वो v के इक्वल होगा, v वेलोसिटी के इक्वल होगा। यानी हम ये कहेंगे कि इट इज बिकम्स इक्वल टू v, तो ये v हो गया, तो ये v हो गया, यानी हमें मैग्नीट्यूड मिला v²/r। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका एक्सेलरेशन का। अब हम ये भी जानते हैं कि v = ω/r जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, इस वैल्यू को अगर डालेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी ω²r²/r, और ये होगा ω²r। तो आप इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। अब हम एक जानते हैं क्या कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का होगा, और वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। यानी ये डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर R1 होगा, यानी हमेशा वेलोसिटी R के परपेंडिकुलर होगा। ये एक रिजल्ट। ये दूसरा रिजल्ट कि डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन V1 के परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका V1 है या ये V1 है तो इसके परपेंडिकुलर, यानी अलोंग द रेडियस होगा। हम इस फिगर में दिखाए हैं, दिस इज द अलोंग द रेडियस, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अलोंग द रेडियस यानी ये रेडियस के अलोंग हमेशा फोर्स होगा, यानी एक्सेलरेशन होगा। अब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज डिफाइंड एज द मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास एक्सेलरेशन इज v²/r, तो ये आपका फोर्स होगा, एंड दिस फोर्स और mω²/r इसको कहेंगे। तो ये दोनों वैल्यू फोर्स का हो सकता है, दोनों एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे कि एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जहां भी होगा, यहाँ होगा तभी सेंटर की ओर, हमेशा सेंटर की ओर। सो इट ऑलवेज सीकिंग द सेंटर, ये सेंटर खोजता रहता है, सेंटर की ओर हमेशा डायरेक्शन होगा। सो दिस फोर्स इज नोन एज
सेंट्रीपिटल, पिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, तो इट इज ए सेंट्रीपिटल नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बात हमने देखा कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फॉर एवरी सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी ए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस फोर्स इज नेसेसरी टू ब्रिंग ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन। जैसे एक स्टोन को आप पत्थर में बांध के घुमाते हो, तो अगर सेंटर की ओर नहीं खींचोगे तो सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। तो सेंटर की ओर एक फोर्स आपको चाहिए एंड दैट फोर्स इज नेसेसरी टू ब्रिंग ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन। तो हमने देखा कि सेंटर की ओर फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और वेलोसिटी जो होगी की डायरेक्शन होगी ऑलवेज आर के परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज द रिजल्ट।